آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ لوک سبھا میں اڈانی اور منی پور تشدد کی گونج، ایوان کی کارروائی 27 نومبر تک کے لیے ملتوی۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے، بیروت پر فضائی حملوں کا جواب۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دی گئی اراضیات کا الاٹمنٹ منسوخ، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اڈانی گروپ کے 100 کروڑ کی عطیہ قبول نہ کرنے حکومت تلنگانہ کا اعلان، رشوت ستانی کے الزامات کے تناظر میں فیصلہ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ برطانیہ میں طوفان کے سبب ہونے والی شدید بارش کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا اور مختلف واقعات میں اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کے سبب لندن سے ویسٹ انگلینڈ اور ویلز تک آمد رفت میں خلل پڑا۔ برطانیہ بھر میں روڈ، ریل اور فضائی سروس متاثر ہوئی۔ انگلینڈ میں 161 فیلڈ وارننگز اور 213 فیلڈ الرٹس جاری کیے گئے، جبکہ ویلز میں 22 فیلڈ وارننگز اور اسکاٹ لینڈ میں فیلڈ کی 4 وارننگز جاری کی گئی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوبی ویلز میں مختلف مقامات پر 100 ملی میٹر تک بارش ہوئی، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں 70 فی گھنٹے کی رفتار سے شدید ہواؤں کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ گزشتہ روز لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں آج صبح سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت شمالی و وسطی اسرائیل حزب اللہ کے راکٹ حملوں کی زد میں ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آج صبح سے ہی حیفا، نہاریہ اور دارالحکومت تل ابیب سمیت شمالی اور وسطی اسرائیل کے علاقوں پر حزب اللہ راکٹ برساتی رہی۔ آج حزب اللہ کی جانب سے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بیروت کے بدلے تل ابیب۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل اپوزیشن سے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے اور عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنے کی درخواست کرتے ہوئے اپیل کی کہ ان کے رویے سے ووٹر اور جمہوریت کے تئیں ان کی وابستگی، آئین کے تئیں ان کی لگن اور پارلیمانی عمل میں ان کے اعتماد کی معنی خیز گونج باہر جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے کہا کہ سرمائی اجلاس ہے اور ماحول بھی سرد ہی رہے گا۔ یہ 2024 کا آخری دور ہے۔ ملک میں 2025 کو جوش و خروش سے خوش آمدید کہنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس کئی لحاظ سے خاص ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کے سفر کے 75ویں سال میں داخل ہونا اپنے آپ میں جمہوریت کے لیے ایک روشن موقع ہے۔ اور ادھک سمرتھن کا व्याप बढ़ा है और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل آج ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ مثبت اور عوامی مفاد کی امور پر تعمیری اور طریقہ کار کے دائرے میں بحث کریں اور قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں۔ اسپیکر اوم برلا نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا، پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اجلاس کے دوران تمام معزز ارکان ان کی مثبت گفتگو اور تعاون کے ذریعے مفاد عامہ کے موضوعات کی عکاسی کریں گے۔ اس سے نہ صرف ایوان کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا بلکہ قومی تعمیر میں بھی ہمارے تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔
लोकसभा में अडानी और मणिपुर के मामले पर बहस कराने की मांग के हवाले से अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से कल के बाद ऐवान की कार्रवाई चारशंबे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, अपोजिशन अरकान ने खड़े होकर अडानी और मणिपुर के मामले पर शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंधिया राय ने नज्म ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखा गया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा ने हाउसिंग सोसाइटीज को दी गई जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। ये फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच ने जारी किया। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अवामी नुमाइंदों, सरकारी ओहदेदारों और सहाफ़ियों के लिए हुकूमतों ने जमीन अलॉट की थी, लेकिन हुकूमत के इन अलॉटमेंट्स को चैलेंज करते हुए राउबुल चिलिकानी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुना दिया। याद रहे कि जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के अरकान को कांग्रेस हुकूमत ने रिहायशी प्लाट्स अलॉट्स किए थे। इस साल 8 सितंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में इन प्लाट्स के असनाद तकसीम किए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इनकी जमीनों की मिल्कियत और सोसाइटी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तेलंगाना हुकूमत ने हालिया दिनों में अडानी ग्रुप के खिलाफ रुश्वत के इल्जामात के दरमियान एक अहम फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से ऐलान किए गए 100 करोड़ रुपए के अतिये को कबूल न करने का फैसला किया। इस बात का इंकशाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात के पेश नज़र अडानी फाउंडेशन से कोई अतिया नहीं लिया जाएगा और इस सिलसिले में अडानी ग्रुप को एक मकतूब भेजा गया है। क्योंकि अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना अलिगेशन फेस करने का ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। मेरे रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि आया वो महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी पर खुशी मना रही है या कांग्रेस की शिकस्त पर। करीमनगर जिले के हुजूराबाद ज़री मार्केट में कमेटी के चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन जी राजेश्वरी स्वामी रेड्डी, वाइस चेयरपर्सन N तिरुपति और कमेटी के अरकान के साथ ज़िले अफसर प्रकाश ने हलफ लिया। बादजा मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि BRS के कायदीन महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये खुशी किसके लिए मनाई जा रही है। अगर कांग्रेस की शिकस्त पर मनाई जा रही है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की कामयाबी पर खुश हैं।
बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने रियासती हुकूमत से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि क्या जात पात की मर्दमशुमारी को कानूनी हैसियत हासिल है या नहीं। कविता ने बीसी तंजीमों, यूनाइटेड फूले फ्रंट और तेलंगाना जागृति के कायदीन के साथ मिलकर तेलंगाना जागृति की क़यादत में 35 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल रिपोर्ट डेडिकेटेड कॉस्ट काउंटिंग कमीशन के चेयरमैन वेंकटेश्वर राव को पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में साबिक हुकूमत ने बीसी तबकात के साथ इंसाफ किया था। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफ है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जात पात की मर्दमशुमारी नहीं करेगी। ప్రాతినిధ్యం ఈ స్టాండ్ ఏంటి అన్నది మేము ఖరాఖండిగా చుల్లబద్దలుగుతున్నాము. బీసీ కోటా ఉండాల్సిందే, కోటా ఉండాల్సిందే, మహిళా రిజర్వేషన్ మేము బలంగా వినిపించాము. అయితే మహిళా రిజర్వేషన్ బీసీ కోటా ఉండాలి అన్నది. तेलंगाना में 4 नए एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए खिदमत दस्तयाब है, जबकि बेगमपेट का एयरपोर्ट सिर्फ अहम शख्सियात के लिए इस्तेमाल में है। हाल ही में वरंगल में एक जलसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल, रामागुंडम, कोत्तागुडम और आदिलाबाद में एयरपोर्ट कायम करने का ऐलान किया था। इससे पहले बीआरएस हुकूमत ने भी एयरपोर्ट्स के कायम के लिए इक़दाम किए थे, जिस पर बीआरएस दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने तकनीकी और इक़्तिसादी जायजे लिए थे, मगर रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। सिद्दीपेट जिले के दोमाट के साबिक रुकन असम्बली डी रामचंद्र रेड्डी चल बसे। उनकी उम्र 88 साल थी। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर पिराना साली के मसाइल की वजह से उनकी मौत हो गई। रेड्डी ने 1985 में तेलुगु देशम के टिकट पर एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी पहली बार सिद्दीपेट से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। रामचंद्र रेड्डी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले हिंदुस्तानी बहरिया में खिदमत अंजाम दी थी। साबिक वजीर टी हरीश राव ने रामचंद्र रेड्डी की मौत पर सदमे का इजहार किया है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ज़ेर इल्तिवा चालानात पर अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए जुर्माने वसूल कर रही है। पुलिस ने चालानों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। 10 से ज़ायद चालाना ज़ेर इल्तिवा वाली गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा रही है। इस मकसद के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुंसलिक फ़ोन नंबर पर एक पैगाम भेजा जाता है और इस केस के दर्ज होने की मालूमात फराहम की जाती है। अदालत में पेश होने की तारीख और वक्त के बारे में मालूमात भेजी जा रही हैं। इसका जवाब न देने वालों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद अदालत में पेश होकर ज़ेर इल्तिवा चालान जमा करना पड़ता है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शुमाली और वस्ती तेलंगाना के अजला में सर्दी का असर ज्यादा है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत आसिफाबाद जिले में रिकॉर्ड किया गया। आसिफाबाद के सिरपुर यू में गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस जिले के केरामेरी, वांकड़ी, तिरियानी और आसिफाबाद मंडलों के बाजार हतनूर, भीमपुर, आदिलाबाद रूरल, नेरड़ीगुंडा और मावाला मंडलों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में मासूम बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा जिले के जैनत मंडल के नीराला मौजे के हनुमान मंदिर के करीब उस वक्त पेश आया जब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाने वाली उटनूर बस डिपो की आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस बाइक से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद बशमूल कमसिन लड़का मौके पर ही जाँ बहक हो गए और एक लड़का शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शनाख्त आदिलाबाद जिला मुस्तकिर के मोहल्ला खानापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 58 साला शेख अली और 4 साला अजहान के तौर पर की गई है, जबकि जख्मी 5 साला अरहान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल के करीब सड़क के दरमियानी हिस्से से एक कार टकरा गई। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मर्सिडीज बेंज जिसे खातून चला रही थी मुबैना तौर पर बेकाबू हो गई और खातून ने इस गाड़ी को सड़क पर मोड़ दिया।
और स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल से महरूम हो गई। ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया, सड़क के दरमियानी हिस्से से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी में मौजूद एयरबैग्स फौरी तौर पर खुल गए, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रास्ते से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को बचाया, जो मुबैना तौर पर हालत नशा में बताई जाती है। हैदराबाद में लिफ्ट के अचानक टूट जाने के नतीजे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया पुराने शहर के चंदूलाल बारादरी इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक टूट कर नीचे आ गई, जिसके नतीजे में ये अफराद जो लिफ्ट में सवार थे जख्मी हो गए। इस वाकये के वक्त लिफ्ट में मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शम्स-आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खवातीन के लगेज में जहरीले सांप देखकर कस्टम्स के हुक्काम हैरतज़दा रह गए। ये वाकया इतवार की शब हैदराबाद के शम्स-आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 खातून मुसाफिरीन बिनकाक से हैदराबाद पहुंची थी, जिनके लगेज में 2 बास्केट्स थीं। कस्टम्स के हुक्काम ने इन बास्केट्स का मुआयना करने का शुबे की बुनियाद पर फैसला किया। ताहम उनको देखकर हैरत हुई कि इन बास्केट्स में 2 गैर मुल्की और जहरीले सांप थे। इन खवातीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई और सांपों को जब्त कर लिया गया। लोकसभा में अडानी और मणिपुर तशद्दुद की गूंज, ऐवान की कार्रवाई 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, बेरूत पर फिजाई हमलों का जवाब। हाउसिंग सोसाइटीज को दी गई अराजियात का अलॉटमेंट मनसूख, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अडानी ग्रुप के 100 करोड़ की अतिया कबूल न करने हुकूमत तेलंगाना का ऐलान, रुश्वत सतानी के इल्जामात के तनाजुर में फैसला। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।